Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम. दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Noorallah. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں. عید کے ان مبارک لمحات میں سلسلہ لے کر آئے ہیں عید نعت خوانوں کے ساتھ. جی ہاں، الحمدللہ، مبلغین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور یہ یونیک پروگرام ہم فرسٹ ٹائم لے کر آئے ہیں کہ عید نعت خوانوں کے ساتھ. اس پروگرام میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، عموماً جب آپ نعت خوانوں کو اسکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ کلام کی فرمائش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، یہ اپنی پیاری پیاری آواز میں کلام سناتے ہیں. لیکن آج عید کے لمحات میں آج یہ پروگرام ہم جو لے کر آئے ہیں، اس میں صرف کلام نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ الکریم ان سے کچھ دلچسپ ہم گفتگو بھی کریں گے. ان کی نعت خوانی کی جرنی کیسی رہی، ان کے کچھ تجربات ہیں، جی کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں، کچھ حادثات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، وہ سب کچھ شامل کریں گے. یعنی یہ پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اینڈ تک آپ شامل رہیے گا. بالخصوص جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ اس پروگرام کو اگر اینڈ تک دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ایک یونیک یہ پروگرام ہے، اس میں مزہ بھی بہت آئے گا. ماشاءاللہ رکن مشاورت حاجی سلیم اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو دعوت اسلامی انڈیا کی جو ہماری ایک کور ٹیم ہے جو پوری انڈیا کو لیڈ کر رہی ہیں، اس کے ایک رکن ہے، ماشاءاللہ بڑے اہم ترین رکن ہے. اور آج ہم نے ان کو اسپیشلی پروگرام میں انوائٹ کیا ہے کیونکہ یہ نعت خوانوں کے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر اجازت دے تو میں یہ کہہ دوں کہ نعت خوانوں کی یہ خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ مقرر ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. عید کے ان لمحات میں ہم سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں سارے نعت خواں سب سے پہلے ہمارے سعید نوری صاحب ہیں. ماشاءاللہ حضور خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ان کو آپ نے دیکھا ہے، یعنی کئی ناظرین پرسنلی میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ سعید بھائی کو کئی لوگ پسند کرتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو نعت خوان نہیں ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، جو نعت خوان ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں. ہمارے بہت سینئر نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی انٹروڈکشن انشاءاللہ انہی کی زبانی سنیں گے. لیکن پہلے حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں. جی سعید بھائی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بغیروں پر ہے. یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے. یا اللہ یا اللہ، تمہاری صاحب سے سلام کے بڑے. یا اللہ یا اللہ، بخش سکے عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو سے پیارے کا. بخش دے تو ہم سب کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ یا
सुभान अल्लाह। अच्छा सईद भाई, एक बात जो मैंने जो है नोट की है, यानी आपके कलाम में कभी कभी ना हाजी मुश्ताक अली रहमा की ना वो एक जो तर्ज होता है उनकी आवाज का वो नजर आ रहा होता है, तो कुछ ऐसा कुछ खास ताल्लुक है और क्या थोड़ी सी जर्नी अगर आप बताएं ना, कब से नात ख्वानी का आगाज किया आपने और कब ये सिलसिला, यानी कनेक्टिविटी कैसे हुई है, बाकायदा नात ख्वानी का आगाज कब से हुआ आपका, और ये जरा आप वजह बताइएगा हाजी मुश्ताक अली रहमा की ये जो तर्ज की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाजी मुश्ताक अली रहमतुल्लाह की सदका है, माशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब माहौल में आया उसके बाद मैंने कैसेट लिया। माहौल में कब आया आप? मैं माहौल में 92 में आया, 92 में, माशाल्लाह 91 या 92 में आया जी। और मैंने एक मकतब से कैसेट लिया था अंदली बे रज़ा, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी कैसेट माशाल्लाह प्यारी थी, बड़ा प्यारा कलाम था, उसको सुनता रहा तो मैंने कहा यार ये आवाज़ दिल को लगती है। क्या बात है, वाह, नात ख्वां साहब अपनी जगह है, माशाल्लाह, लेकिन इनकी आवाज़ दिल को लगती है। क्या है, क्या चीज़ है? किसकी आवाज थी वो? हाजी मुश्ताक अली वाह, रहमतुल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये सब मामला चलता रहा और एक खुशी लगी कि भाई कुछ करना है, इनको इनके जैसा कलाम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छों की नकल अच्छी होती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मुझे 245 तर्ज याद है, अरे वाह, 245, 245 हाजी मुश्ताक अली रहमा के, यानी पूरी जो है वो आप कॉपी कर लेते हैं? माशाल्लाह, कोशिश करता हूँ माशाल्लाह, क्या बात है। 245। और वैसी आवाज़ में पढ़ नहीं पाऊंगा लेकिन तर्ज भूल नहीं पाऊंगा। सही कह रहा हूं? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, यानी इतना कॉन्फिडेंस है और माशाल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हो सकता है नाज़रीन ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हो कि हाजी मुश्ताक अली रहमा कौन है, तो जी हाँ, हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका इंतकाल हो चुका, लेकिन बड़ी दावत इस्लामी की अजीम शख्सियत है। सबसे पहले दावत इस्लामी की ये निगरान शूरा हैं, जो मरकज़ी मजलिस शूरा पूरी दावत इस्लामी जो दुनिया दावत इस्लामी को चला रही है। अमीर अहले सुन्नत ने सबसे पहले अगर शूरा का निगरान किसी को बनाया तो वह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। इनके अंदाज भी बड़े प्यारे थे, इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे, जो कि अल्लाह पाक के वली हैं और मकबूल तरीन शख्सियत है। यानी इंतकाल इनका होने से पहले ये बिशारत ख्वाब में आने लगी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, कि मैं अपने मुश्ताक का इंतजार कर रहा हूँ। तो यह मकबूल नातखा है ना, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने नातखा हैं, आज ईद के जो है वो लम्हात हैं, हम सबकी तमन्ना है, जो नातखा है सब ये तमन्ना करता है कि काश यार वो किस्मत मुझे मिल जाए जो हादी मुश्ताक को मिली थी। सुभान अल्लाह। तो फिर सीधी यानी 92 से आपने आगाज किया, फिर कैसे महफिलों से कैसे कनेक्ट हुए, यानी कि ऐसे ही के स्टार्ट लिया और डायरेक्ट आप स्टेज पर चले गए, ऐसा कुछ हुआ है? माशाल्लाह। बस 92 में मैं हिंदुस्तानी मस्जिद में कलाम पढ़ रहा था, हाजी मुश्ताक अली रहमतुल्लाह। कहाँ ये हिंदुस्तानी मस्जिद? मुंबई में? मुंबई में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ मैं पहली मरतबा कलाम पढ़ा हूँ तो माइक ऐसा मेरा पूरा हाथ हिलता था। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा वो हाँ, फर्स्ट टाइम था ना, मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा ना। और ठंडी का महीना तो पूरा पसीना पसीना हो गया। अल्लाह अकबर। तो फिर वो बैठा के तो किसी ने तोहफा दिया मुझे, हमारे इकबाल मंसूरी भाई। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने तोहफा अल्लाह दिया, सलामत रखे माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के कुछ आगे बढ़ना है। क्या बात है। मैं माशाल्लाह, मुझे हाजी मुश्ताक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माशाल्लाह 5 से 7 मिनट तक गले पे दम। अच्छा माशाल्लाह, यानी हाजी मुश्ताक अली रहमा से मुलाकात भी माशाल्लाह शर्फ हासिल पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। एक माइक उनके हाथ में, एक माइक मेरे हाथ। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कब का वाकया है ये 97 का वक्त, 97 का, मुंबई में? मुंबई में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मुखलिस नात ख्वां थे उनका, उनके बस सदका है माशाल्लाह। ये है कि आप 92 से तो आपने वो कैसेट ली और पढ़ना शुरू किया जी। उससे पहले भी तो पढ़ते होगे ना? नहीं नहीं, उसके बाद में जो है वो सिलसिला दावत इस्लामी में आकर ही ये सिलसिला शुरू हुआ। ये नात खानों का मकाम तो बड़ा होता है ना यार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी हमें सिखाया है, बताया कि नात खान का मकाम क्या होता है। हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पर बिठाते हैं और खुद नीचे तशरीफ फरमा होकर बोलते हैं, हस्सान नात सुनाओ। तो माशाल्लाह ये नात खान बड़े मुअज़्ज़म होते हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा, डिमांड बढ़ती रही। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो जो है वो ऐसा हुआ ना, थोड़ा दूजने वाला मामला ना, फिर उसके बाद कभी हुआ ऐसा? उसके बाद माशाल्लाह बस वो सिलसिला चलता रहा। फर्स्ट टाइम तो हर एक नात ख्वां घबरा जाता है ना, और मुझे वो उलमा इकराम के बीच में बिठा दिया, क्या पढ़ो, और तलफ़ुज़ भी सही नहीं था लेकिन पढ़ दिया माशाल्लाह, बस दुआओं का सदका था। क्या बात है। अच्छा, और इस्लाम भाई के साथ भी ऐसा होगा माशाल्लाह। हमारे कई सारे इस्लाम भाई, आसिम भाई हैं नात ख्वां हमारे साथ शामिल हैं, नसीरुद्दीन भाई हैं, और हमारे माशाल्लाह तनवीर भाई जिनकी ज़ियारत आप करते होंगे, बड़े बेहतरीन नात ख्वां हैं और इनको काफ़ी पसंद किया जाता है। दावत इस्लाम इंडिया के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह। और हमारे इसी तरह इब्राहिम भाई हैं, इन्होंने तो हाजी साहब जो संभाला था ना वो 12वीं शरीफ की महफिल, मैं भूलता नहीं है। अच्छा, वो हमारे यहाँ जो डिस्कशन हो रही थी ना, मैं उसको भी नहीं भूलता, और इन्होंने जो महफिल संभाली थी मैं उसको भी नहीं भूलता। चले मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था सईद भाई
कि यहाँ पर ना थोड़ी टेस्टिंग चल रही थी ना, क्योंकि 12वीं शरीफ की जो है वो शब है, इतना बड़ा जो है वो प्रोग्राम है, इज्तिमा है, महफिल है, और वो समझे कि हमारा पूरा सालाना एक इवेंट होता है। तो अब हाजी सलीम साहब जो कि वो महफिल का जदवल बनाते थे, हमने इनको अर्ज किया कि आप जदवल बनाइए, तो इन्होंने जदवल बनाया, तो नए नए इस्लामी भाइयों को ना शामिल किया। अब मैं थोड़ा सा तजब्जुब में आया कि यार इनको हमने कभी सुना नहीं है, चैनल पर आए नहीं है, इतनी बड़ी महफिल में ये पढ़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा, अल्लाह इनको सलामत रखे, यानी इन्होंने नाम दे दिया ना तो संभाल कर लेकर चलें। वहां से कॉल भी कर रहे हैं, आप कॉल पर सुन लीजिए इनकी आवाज को, इनकी तर्ज को सुन लीजिए, इनसे हमें पढ़वाना है, बड़े प्यारे इस्लामी भाई है। यानी ये हौसला अफजाई बड़ों की ना, आगे बढ़ाने का जो एक सिलसिला होता है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो ये हुआ, हमने कहा एक काम करते, साथ में भी जो है ना वो बैठ जाते हैं। हम यहाँ पर बैठे साथ में, और माशाल्लाह कुछ ना कुछ तकरार का सिलसिला हुआ, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ रहा था। हमने कहा चले खैर है, इंशाल्लाह सब अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होंगी। अब इब्राहिम भाई के साथ क्या हुआ था ना कि इनके हाथ पे पटा बंधा हुआ था जी। अब वो पटा स्क्रीन पर ऐसा लगता था कि इतना बड़ा जो है वो नजर आएगा, कैसे लुक वाइज कैसा लगेगा, क्या होगा। थोड़ा सा हम जो है वो कर रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा हुआ कि चलो ना इनको कहते हैं कि यार आप जो है वो मतलब नेक्स्ट ईयर कभी जो है वो मौका मिल जाए तो आप आइएगा। तो हाजी सलीम साहब ने कहा कि यार मैं इनसे बात करता हूँ ना, इसका क्या हो सकता है, यानी यहाँ पे सहारा ना, मैं बात करता हूँ कि क्या हो सकता है। फिर थोड़ा पटा वगैरह इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा उसको ढाक लूंगा, ऐसा कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है चल जाएगा। सईद भाई इन्होंने जो महफिल संभाली ना, यानी शबे विलादत की जो महफिल संभाली है, मुझे लगता है तकरीबन सबके गले बैठ गए थे महफिल में। और इब्राहिम भाई जो है वो माशाल्लाह आखिर वक्त तक जो है वो दम लगा कर पढ़ रहे थे माशाल्लाह। आज भी गला बैठा हुआ है, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, ये तो गले तो जो है वो नाथवानों के बैठ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, आसिम भाई से मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा हुआ आसिम भाई कि आपने महफिल की पूरी तैयारी की हो और आपको लगा ना कि यार तादाद आने वाली और आपका गला बैठ गया, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? या पढ़ते पढ़ते गला बैठ गया तो फिर आपने कैसे थोड़ा सा जो है ना उसको एडजस्ट किया कि यार अब क्या करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, मैं पढ़ने के लिए मुझे बुलाया है? ऐसा था नहीं, सबके 11वीं का जुलूस था। हाँ। और जानते हो कि बॉम्बे में ईद जुलूस में गौसिया तो का फिर जुलूस जोशीला जो कैसा है वो होता है। अब इसमें उलमा कराम ने जो है कहा कि दावत इस्लामी वाले पहले अपनी गाड़ी शुरू कर दे। चूंकि उलमा कराम को दावत इस्लामी से काफी तवक्को होती है, चूंकि अवाम मतलब बोलो तो दावत इस्लामी का दूसरा नाम। हाँ, एक नज़्म ज़ब्त के साथ माशाल्लाह जुलूस का सिलसिला होता है दावत उस इस्लामी। अंदाज से जो है वो, अब वो हमारे मदनपुरे के पास बड़ी मस्जिद के पास से ही जो है ना वो जुलूस शुरू हो गया। और उस वक्त मेरे ख्याल से कोई नातख्वाह मौजूद भी नहीं था। और मैं मौजूद था, हमने इलाके के साथ इस्लामी भाइयों को ले जाके पहुंच गए और गाड़ी भी शुरू, ट्रक भी रेडी सब, और अवाम भी लाइन से लगी पड़ी है। अब था कि इस्लामी भाइयों को लाइन से लगाना है। अब मैं समझा कि शायद मेरा जदवल आखिर में आएगा। तो मेरा इत्मीनान से जब तक मेरी आवाज भी सही हो जाएगी, अब जब सुबह से जमा कर ही रहे हम लोग, 11 बजे से तादाद जमा करे इस्लामी भाइयों को, और मुझे 2 बजे गाड़ी पे चढ़ा दिया गया। अच्छा, कि भी आप पढ़िए, अब आगाज ही आप करें। अब मैं अल्लाह खैर करे, मतलब मैं तो भूखा हूँ, सुबह से इस्लामी भाइयों को जमा कर रहा हूँ। तो मेरे एक इस्लामी भाई थे साथ में, राशिद भाई करके थे। तो राशिद भाई ने मेरी हिम्मत अफजाई की कि यार आपके हाथ में माइक आया है और ये अवाम आपको जानती है, यहाँ की अवाम आपको जानती है, अब अल्लाह रसूल का नाम ले और शुरू कर दे, किसी भी तरीके से आपको संभालना है। और ऐसा मैं जो संभाला था तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा में ही पढ़ता रहा। अरे वाह माशाल्लाह, पूरा मतलब मदनपुरे के एंड तक के वो जुलूस को संभालता रहा। लेकिन आवाज थोड़ी सी जो है वो आपकी जी, वो पीछे से आपने माइक किसको दिया? इस्लामी भाई अब चढ़ी थे ही नहीं, इस्लामी भाई कोई मौजूद ही नहीं थे और कोई आ ही नहीं रहा था ऊपर। लेकिन अच्छा ये भी है ना सईद भाई, यानी अगर माइक जिम्मेदारी के साथ दिया जाए तो ये कि जिम्मेदारी के साथ निभाना भी तो हो जाता है ना। अच्छा, ये भी तो चीजें होती है ना कभी कभी कि किसी महफिल में चंद नातखानों को बुलाया गया, हाँ, और यूं 10-15 अगर नातखा आए हुए हैं तो नंबर थोड़ा सा मुश्किल से आने वाला जो है वो सिलसिला होता है। तो उसकी भी किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तजुर्बात तो होंगे माशाल्लाह। तो आप ख्याल मिलाइए, इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो आपसे जानना है। हुआ था उर्से रजा में जो है वो पहली बार हमारा उर्से रजा हाजी अली की दरगाह के सहन में जी पहली बार हमको परमिशन मिली थी। और नातखानों की अक्सर जो जिम्मेदारी की खिदमत जो होती थी मुझे दी जाती थी, जुनेद भाई देते थे कि नातखानों को आप जमा कर ले और जो है वो कलाम सुन ले, वक्त तय कर ले। अब यूं था कि मैं काफिले में गया हुआ था पनवेल, अब वहीं पनवेल से इस्लामी भाइयों से राब्ता कर करके जो है वो हमने सब मशवरा किया, वहीं जदवल बनाया। अब पहले जदवल 2 घंटे का था, फिर बाद में मिला कि भाई परमिशन 1 घंटे की है, 1 घंटे में जो है वो कुछ देर बयान होगा और कुछ कलाम चलेंगे। मतलब सीधा 12 कलाम से हम लोग 6 कलाम पर आ गए, 6 कलाम से 4 कलाम पर आ गए। अब किसको लूं किसको नहीं लूं, तो उसमें ऐसा हुआ कि मतलब हमने इतनी मेहनत की तो मतलब सब हमको जो सईद भाई ने और जुनेद भाई ने यही ज़हन दिया है कि आपको पढ़ने मिले तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ने मिले तो भी सुभान अल्लाह। तो हम सब पीछे हो गए। तो नए इस्लामी भाइयों को 4 कलाम, पढ़ने वाले 12। अच्छा, हाजी मुश्ताक अली रहमत का अंदाज भी जो मैंने सुना है वो यही था कि महफिल में जाते थे ना
تو سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کلام پڑھ لیا, آپ نے کلام پڑھ لیا, یعنی باری باری سب سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کلام پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی پہلے میرے بھائی لوگ جو ہے وہ آگے جائیں اور پھر جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. 97 کی بات تھی, حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی انڈیا تشریف لائے ہوئے تھے اور 15 شعبان کی شب تھی, جی شب برات تھی, اور ہم کو پتا تھا کہ شاید حاجی مشتاق اتاری کا جدول بہت ٹائٹ ہے, ہوا تو آپ تشریف لائیں گے. تو بڑے قبرستان میں حاجی مشتاق اتاری کا کنفرم نہیں تھا یہ سب کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے, تو میں کلام پڑھ ہی رہا تھا اور حاجی مشتاق اتاری جو بالکل میرے بازو میں آ کے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اس طریقے سے مجھے پش کیا کہ آپ کلام جاری رکھیں. اب میں پڑھتے پڑھتے دیکھا تو اللہ خیر کرے حاجی مشتاق اتاری بازو میں. اب میں 3 شعر پڑھ کر کے جیسے حاجی صاحب کو میں نے مائک پیش کر دیا, حاجی صاحب نے جو انداز میں 2.5 گھنٹہ محفل چلائی, پھر آخر میں جاتے جاتے جو نا صاحب وہ قطعی چادر استعمال کرتے تھے, تو حاجی مشتاق اتاری نے اپنی چادر مجھے تحفے میں دی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آج تک جو ہے نا میرے دل و دماغ پر نقش ہے. جاتے جاتے اتنے نرم لہجے میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا دعاؤں میں یاد رکھنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھیں حاجی مشتاق علیہ رحمہ پر, اللہ پاک کرو رحمتوں کا. یقین جانے حاجی صاحب اس رات سب چلے گئے, میں قبرستان میں 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے روتا رہا. اللہ اللہ, اتنا بڑا نعت خواں سبحان اللہ, اور ایسی جو ہے وہ عاجزی. حاجی صاحب یہ فرما کے کہ بیٹا دعاؤں میں یاد رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ بھی محفلوں کے ماشاءاللہ تجربے ہیں, اللہ پاک سلامت رکھے. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی نا نعت خوانوں کے لیے کہ اگر چند نعت خواں ہوں تو سب کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. اچھا پھر اس نیت کے ساتھ جائیں کہ یار میں سننے کے لیے جا رہا ہوں, موقع ملا تو میں بھی کچھ نہ کچھ کلام سنا دوں گا, کچھ نہ کچھ اشعار جو ہے وہ سنا دوں گا. اگر وہ اسپیشل اگر نعت خواں بن کے گئے اور اگر موقع نہ ملا تو بعض اوقات پھر وہ رنجیدگی وغیرہ ہو جاتی ہے, یہ والی چیزیں ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی نا حاجی صاحب آپ اس پر رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی نعت خواں کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ محفل میں ہے, اب وہ جس کو دیا ہے اس نے آنکھ بند کی اور وہ جناب اب جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہے, اب وہ جو آس پاس ہے اس کا اس نے خیال نہیں رکھنا ہے کہ بھائی پبلک سے اگر رسپانس مل رہا ہے نا تو مائک چھوٹتا نہیں ہے. اچھا پھر اگر نہ چھوٹے تو کیا دوسرے نعت خواں اس پر بدگمانی کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ آپ یہ یار یہ ایسا بندہ ہے کہ مائک ہی نہیں چھوڑتا ہے, یہ لگا ہی رہتا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کیا تربیت کریں گے اس پر؟ دیکھیں یہ تو مطلب اب دل کے حالات تو ہم نہیں جان سکتے جی جی کہ اب کیا ہوا ہے کیا نہیں. حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ عشق رسول میں مطلب کوئی ایسا مطلب مچل گئے ہے کہ بس پڑھے جا رہے اور اگر نیکسٹ لیول کا گمان کرے تو یہ تصور کر لے کہ یہاں ہے ہی نہیں, مدینے میں پہنچ گیا ہے, اب اس کو جو ہے وہ چھیڑنے کا نہیں, اس کو مدینے میں رہنے دو. لیکن جب مدینے سے واپس آ جائیں اور محبت کے ساتھ اگر کوئی بڑا ہے, کیونکہ اگر سب کو وقت دیا ہوا ہے نا, اگر بانی محفل نے سب کو وقت دیا ہوا ہے اور اگر کسی کا اس طرح کا جو ہے وہ نمبر نہیں آتا ہے تو محبت کے ساتھ بعد میں جو ہے وہ سمجھانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے نا. دیکھیں اب کیا ہے, جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. جی اصل مقصد کیا تھا, نعت خوانی کرنی تھی, اللہ اور رسول کا ذکر کرنا تھا, اور وہ ہو گیا, چاہے میرے ذریعے سے ہو چاہے کسی اور کے ذریعے سے. بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات. جی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے, اور یہ واقعہ میں نے سنا تھا محسن دعوت اسلامی, سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان. ماشاءاللہ. آپ فرما رہے تھے کہ میں ایک جگہ جو ہے تو بیان کے لیے مجھ کو بلایا گیا, اور میرے بعد کسی اور کا بیان ہونا تھا, لیکن بیان اس انداز میں چل رہا تھا نا کہ قوم کو جو چیز چاہیے تھی وہ پیش کی جا رہی تھی. سبحان اللہ. اب جیسی جو مقرر آئے تو میں نے سوچا کہ بس اب ہم نے مطلب ختم کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کہتے چلے جاؤ, کہتے چلے جاؤ, اس لیے کہ مقصد کیا ہے, نیکی کی دعوت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو کام میرے ذریعے ہو رہا تھا وہ آپ کے ذریعے ہو رہا ہے. چلے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا بات, بڑی پیاری بات. عید کے لمحات میں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہترین مدنی پھولوں کا سامان ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ تو ہر جگہ پر ہی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے بھائی لوگ ساتھ میں ہم سب کو موقع دیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کی یوں سمجھے کہ منزل تک پہنچ جائے گا. نصیر الدین بھائی بھی ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کا تو وہ ایک جوشیلا انداز اور ایک آپ کی جو پک ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی کمال کی ہے ماشاءاللہ. کب سے نعت خوانی کا سلسلہ کب سے ہوا ہے آپ کا؟ پہلے تو بتائیں آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے, کیا سلسلہ ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, میرا نام محمد نصیر الدین اتاری ہے, میں گوونڈی سے ہوں, اور اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی گوونڈی ممبئی میں ہی ہے؟ گوونڈی ممبئی, ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی یہ سن 2000 میں ہوئی. اچھا. اور ہفتہ واری اجتماع میں, سب سے پہلے ہفتہ واری اجتماع میں جانا ہوا. اچھا. ہفتہ واری اجتماع میں جا کے جب بیٹھتے تھے ہم تو نعت خوان اسلام میں الگ الگ ہر ہفتے ہوتے تھے, اور اجتماع کے الحمدللہ ایک دم پابندی تھی کہ اجتماع چھوڑنا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور بڑا ذوق و شوق آتا تھا, وہ کلام میں پڑھے جاتے تھے الگ الگ ہر ہفتے, نئے کلام اور نعت خوانوں سے سننے ملتے تھے, تو وہ ایک شوق و جذبہ
वहां से नात शरीफ पढ़ने का मिला। और जब बाहर अब इज्तिमा के बाहर जब आए तो मकतबतुल मदीना हमारा लगता था, जी जी, तो पॉकेट साइज रिसाले होते थे उस टाइम पे, दुर्रे नायाब, नूरी महफिल, मुग़िलाने मदीना, सहाबे मदीना, इस तरह के अरमगाने मदीना, अमीर सुन्नत। यानी आपको इतनी किताबों के नाम याद है तो कलाम भी काफी याद होंगे फिर माशाल्लाह। कोशिश रहती है थोड़े थोड़े माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो किताबें अमीर सुन्नत के रिसाले का हर हफ्ते एक ऐलान होता था, उसके बाद वो भी रिसाले हम साथ में ले लेते कि नात शरीफ चुनिंदा मुंतखब उसमें कलाम होते थे जो नात खानों ने पढ़े हुए। ठीक है। अब कैसेट भी होती थी उस वक्त, कैसेट का जमाना था, टेप कैसेट का। जी जी, तो वो टेप कैसेट भी ले लेते थे, घर पे ले गए, कलाम सुना, और उसके बाद जो वो पॉकेट साइज रिसाला होता था जिसमें नात होती थी, मुंतखब जो कलाम होते थे, ढूंढते थे कि ये कलाम कहाँ से मिलेगा, वो जो सुने थे वो कलाम कहाँ मिलेगा, वो फला किताब में मिले, तो अब उसको बस यूं ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूं ही पढ़ रहे हैं। तो आपने कब जैसे रियलाइज किया कि यार नहीं अब मेरी आवाज माशाल्लाह जो है वो अच्छी है और लोग पसंद करेंगे? ऐसा सोचा नहीं कि कभी अच्छी है, बस ये सोचा कि पढ़ना एक शौक था। अच्छा, कि पढ़ना है। और पढ़ते 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 यूं हुआ कि एक मरतबा हमारे ज़ेली हल्के में बड़े पैमाने पे, इस ज़ेली हल्का क्या होता है? ज़ेली हल्का दावत इस्लामी की इस्लाम में एक मस्जिद होती है जिसे ज़ेली हल्का कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे ही यानी हमारे एरियाज तकसीम होते हैं ताकि हम एक दीनी काम प्रॉपर कर सकें। जी ठीक है जी जी। तो वो ज़ेली हल्के में बड़े पैमाने पे महफिल थी। तो उस वक्त उस महफिल के होने से पहले जो है वो सबका ऑडिशन गोया के लिया जा रहा है कि आपको पढ़ना, जदवल में नाम है तो पहले कलाम सुना दो। मुझसे भी सुना गया कलाम, मुझे रिजेक्ट कर दिया कि बोले आप नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा, वो शुरुआती एकदम, मेरी उम्र भी बहुत कम थी उस वक्त, मैं नाबालिग ही था, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो गया था। 14 साल का था। अच्छा, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता। कैसी फीलिंग कैसी थी आपकी कि यार मैं रिजेक्ट हो गया हूँ? मतलब क्या क्या उस वक्त क्या फीलिंग थी? अब उम्र कम है तो उसका तकाजा भी है कि इतनी समझ नहीं होती कि ये क्या हो रहा है। जैसा कि भी आप इरशाद फरमा रहे थे कि वो नातखानों को मौका देना चाहिए। तो वो मेरे जहन में एक वाकया यहाँ का हज हाउस का है, था ये बहुत बाद का वाकया, जब दावत इस्लामी में अरसा गुजर गया था। हज हाउस में शबे मेराज की महफिल थी। उस वक्त जो है वो इज्तिमाई तौर पे सारे मुंबई के अतराफ से इस्लामाबाद गाड़ियां लेकर पहुंचते थे। शबे मेराज की बड़ी महफिल थी और उस महफिल के इख्तिताम पर है सब आरा सब हूर मलक, आखिरी वाला कलाम जो है मुझे दिया गया था कि आपको पढ़ना है। ये बहुत बात की बात है नहीं वो। तो अब कलाम आने वाला ही है कि मुझे पढ़ना है, जदवल में मेरा नाम आने वाला ही है। अचानक जो कोई बड़े जिम्मेदार नात खान बाहर से तशरीफ ले। अच्छा, मुझे बोले मदीना इनकी तरकीब बना देते, इनको पढ़ लें, आप इनके साथ पढ़ लें। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं खुश भी होगा क्योंकि इतना बड़ा मजमा है, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि मैं पढ़ूंगा तो पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये साथ में आगे चले आप ये पढ़ लें। वही बात हुई कि दिल में उस वक्त यानी फराग दिली का आपने इजहार किया अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ये एक अच्छी बात है ना, यानी एक अच्छी सिफत का आपने इजहार किया कि चले फराग दिली के साथ चले, मौका मिल गया तो हम आगे इनको बढ़ा देते हैं, आप पढ़िए, सब मिलके पढ़ते हैं। उस वक्त यही जहन में आया कि ये पढ़ रहे हैं और महफिल कामयाब हो गई ना दावत इस्लामी की, यही मेरे लिए काफी है अल्हम्दुलिल्लाह कि कामयाब हो गई महफिल, बहुत जबरदस्त महफिल। सही। चले आपसे कुछ अशार भी सुनते हैं इंशाल्लाह, कुछ कलाम भी सुनेंगे। तनवीर भाई माशाल्लाह ईद के लम्हात जारी हैं, कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह, ईद का मौका है, बहुत खुशी का मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा खुशी कि हमारे उस्ताद गिरामी के साथ हम, हमारे इस्लामी भाइयों नात खानों के साथ हम बैठे हुए हैं। कौन है उस्ताद गिरामी? कौन है? माशाल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी हाजी सईद भाई हैं। माशाल्लाह। देखिए ये एक और फजीलत का जो है वो इजहार हुआ है, हम तो जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि सईद भाई हमारे हैं वो ये सिर्फ नात खान नहीं है बल्कि नात खानों के उस्ताद भी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बचपन से नात शरीफ पढ़ने का मुझे शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी टूटे फूटे अंदाज में अभी भी वैसे ही पढ़ता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई, आसिम भाई कल्याण तशरीफ़ लाया करते थे और कई बार भिवंडी भी तशरीफ़ लाए थे। तो इन्होंने किस तरीके से पढ़ना है नात शरीफ, सारा जो है वो कैसे सिलसिला करना है, महफिल कैसे संभालना है, ये सारी माशाल्लाह खैर ख्वाही आसिम भाई और सईद भाई ने माशाल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की बदौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ने का मौका मिलता है। कैसा मौका मिलता है? किस तरह के महफिलों में जाते हैं? कितने लोग आपको इनवाइट करते हैं? क्या सिलसिला होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भिवंडी वगैरह में तकरीबन जो रबी नूर शरीफ की महफिल होती है ये इन्हीं की बदौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी महफिल संभालने का मौका मिलता है और भिवंडी के इस्लामी भाई साथ में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा हफ्तावार इज्तिमात और यूं अच्छा आशिकान रसूल की भी तो महफिल होती है ना, वहाँ पर भी कुछ जाने का सिलसिला, कुछ तजुर्बा? अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। भिवंडी में भी तरकीबात होते रहती है तो मौका मिलते रहता है। कब से आप नात ख़्वानी बाकायदा इस लेवल पर कब से आपने स्टार्ट की? जी शुरुआत में मैंने कहा कि बचपन से मुझे शौक है पढ़ने का, मगर कैसे पढ़ना चाहिए वो उसके बारे में मुझको इल्म नहीं था। ऐसा होता था कि कभी इज्तिमात में गए, एक कलाम पढ़े, आवाज़ बैठ जाती थी, है ना, दूसरा अगर फरमाइश किया गया दूसरा कलाम पढ़ना है तो आवाज़ बैठ जाती थी। अच्छा चले कोई एक शेर
किसी कलाम का एक शेर जो हाजी साहब ने जो है वो आपको कहा हो ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो, और आपने उस वक्त से उसको उस तरह पढ़ना जो है स्टार्ट किया है, सुना दीजिए ना। जी, अभी 2 दिन पहले की बात अच्छा। है। मैं अक्सर माशाअल्लाह यानी मैं जो है वो फोन करके सीखते ही रहता हूँ। क्या बात है। कि इस तरीके से पढ़ना है। तो बहुत हाजी साहब माशाअल्लाह इनकी तरबियत इनकी जो करते हैं। गिरफ्त है ना वो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। ये मदीने जो है ना वो ले गए हैं और इंशाल्लाह वहां रख कर ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो सुनाइए ना, एक शेर सुनाइए ना। अच्छा ये जरा बताइए, ये दिलचस्पी का बायस बनेगा, ये बताइए कि क्या मतलब आप कैसे पढ़ रहे थे या आपने कैसे इनसे कांटेक्ट किया कि कैसे पढ़ूं, क्या करूं? अभी जो कलाम पढ़े तो माशाल्लाह हाजी साहब ने इस्लाह फरमाई। अभी 2 दिन पहले मैं इन्हीं फ़ोन से जो है बात किया था, इससे मशवरा चल रहा था कि एक कलाम की तरकीब है मेरी, पढ़ने की नीयत है जी। तो हाजी साहब ने जो है वो इस्लाह फरमाई कि इसको शुरू हलक से जो है शुरू करो, नीचे से शुरू करो। क्या बात है। हम ऊपर से पढ़ते और फिर जब खींचने का यानी मौका आता तरन्नुम तो का भी एक गड़बड़ अपना एक जाता है। अंदाज होता है। ठीक है जी, माशाल्लाह। अभी एक सुनाइए ना, एक शेर सुनाइए ना फिर। अभी एक कलाम था तो उसकी तरकीब नहीं। हमें बुलाना का, हमें बुलाना का, अभी मैं जो शुरू में ऊपर से पढ़ रहा था, हमें बुलाना का, सईद भाई ने इस्लाह फरमाई कि नीचे से शुरू, हमें बुलाना का, हमें बुलाना का, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, बुला लो गिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ, तेरे दर पर मदीने में, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। नातखा इस्लाम भाई जब वो प्रैक्टिस नहीं होती तो वो उनकी पिक जो स्टार्ट की होती है वही हाई हो जाती है, तो अब वो नेक्स्ट जब शेर पर जाते हैं ना तो फिर उनकी आवाज वो खत्म हो चुकी होती है, वो एकदम जो है वो पूरा आवाज ही उनकी ना वो खत्म हो जाती है। तो मतलब ये आपने बताया कि थोड़ा नीचे लेवल से जो है वो स्टार्ट ले, क्या बताया आपने? हमारे साईं भाई ना फौरन इतना जोर से पढ़ लेते ना कि आवाज बैठ जाती है। हाँ। अब कलाम है हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, अब उसको स्लो, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना क्या बात है, क्या बात या है। हबीब अल्लाह। यानी थोड़ा अगर यूं अगर स्टार्ट ले तो नेक्स्ट जो शेर है या आखिर तक जो है वो वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा हमको और पढ़ना तर्ज है भी पेट हमारी से, बैठी रहेगी। यहाँ से पढ़ना है। ये इस्तिलाहतें भी नात खानों की कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज सिर्फ नात खान जो है वो ना सिर्फ सुननी नहीं है बल्कि नात खानी करनी कैसी है, ये सारी इस्तिलाहतों के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप सुनते रहें, देखते रहें। जो नात खान है वो भी सोच रहे होंगे कि यार हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो जो है वो हमने भी इतनी नोट नहीं की, तो आज इंशाल्लाह सब कुछ हो रहा है। हमारे आसिम भाई जो है ना, हाँ। माशाल्लाह ये सब हर मशवरे में ना बोलते अंतड़े से पढ़ो। हाँ, अंतड़े से पढ़ो। अंतड़ा अपने समझ में नहीं आया कि अंतड़ा बॉडी में है कि सही है। अब यानी वो कोई एक चीज होती है ना, एक होता है हल्क होता है, जी जी, हल्क के नीचे भी एक हिस्सा होता है बफ, तो वहां से हमको आवाज निकालनी होती है, जो बिल्कुल लाइट बोलना होता है, क्योंकि बंदा जितना लाइट बोलेगा ना वो घंटों बोल सकता है, और थोड़ा लाउड बोलेगा ना तो 1 घंटे के बदले वो 10 मिनट में या विद इन 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा उसका एनर्जी। अच्छा, इसमें भी सारी नियतें ये होना कि हमारी आवाज थोड़ी बरकरार रहेंगी, और थोड़ा अगर अच्छी आवाज हमारी रहेगी तो इंशाल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की नातख्वानी ज्यादा कर पाएंगे, आशिकान रसूल को ज्यादा झुमा पाएंगे, ज्यादा महफिल का ये सिलसिला रहेगा। तो इंशाल्लाह ये अच्छी अच्छी नियतों के साथ ये सारी चीजें होती है। अच्छा, नातख्वानों का कुछ यानी कुछ खाने पीने में एहतियातों का भी सिलसिला तो रहता होगा ना, मैं इस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले माशाल्लाह हमारे मुस्तकीम भाई मुस्कुरा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, ईद का दिन है और आप देख रहे हैं ईद के दिन ये सिलसिला। मुस्तकीम भाई को माइक दिया जाए। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? आपको मैंने बड़ा खामोश पाया है, यानी वाकई में ये नहीं ऐसा ही हर जगह, या फिर थोड़ा अभी प्रोग्राम में थोड़ा सा खामोश का सिलसिला, या फिर ऐसा बाहर थोड़ा रहता है सिलसिला? माशाल्लाह,
کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھیں. کیا آپ کی کیسی جرنی کب سے اسٹارٹ ہوئی ہے؟ میں 2000 سے ماحول سے ہوں, اللہ کا کرم ہے. میرے والد صاحب نے مجھے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جایا کرتے تھے. اچھا, پھر کرلا کے ذمہ داران سے میرے رابطے ہوئے, پھر آہستہ آہستہ ماحول میں آنے کے بعد نعت خوانی شروع کی گئی. صحیح ہے, ماشاء اور اللہ. ویسے تو میں پہلے سے بچپن سے پڑھتا تھا نعت خوانی. جی جی جب میں مدرسے جاتا تھا جی تو جی وہاں ہمارے استاد صاحب مجھے سکھایا کرتے تھے. جی جی. تو سب سے پہلا جو کلام میں نے پڑھا تھا بچپن میں, ایک دی حضرت بلال نے کعبے سے جب ستا, ہاں ہاں. تو یہ کلام میں سب سے پہلے پڑھا کرتا تھا بچپن. ارے واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. یہ بھی یہ آپ کے ایک یادگار لمحہ ہے کہ پہلا کون سا پڑھا. تو آپ بھی تھوڑے دوج رہے تھے یا پھر ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ پڑھا ہوا تھا؟ کانفیڈنس کے ساتھ تو نہیں پڑھا تھا اس وقت, تھوڑا. اچھا, مجھے بھی اپنا پہلا کلام یاد ہے حاجی صاحب. ایکچولی میری بھی اگر تھوڑا سا بتاؤں, اگر آپ لوگ اجازت دیں, پروگرام آپ کا ہے, میں آپ کو صرف آپ کی گفتگو کو آگے پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو میرا بھی جو آغاز ہوا نا, جو انٹری ہوئی نا, وہ نعت خوانی سے ہوئی. ایکچولی ہم کیا کرتے تھے کہ محلے کی مسجد میں نا ویکلی ایک محفل ہوتی تھی, مسجد کے امام صاحب ہم لوگ کرتے تھے. ایک دن ایک محفل میں جو ہے کچھ مبلغین کو بھی انوائٹ کر لیا. اب وہ ہوتا ہے نا ایک مزاج کے جیسے لوگ ویسا مزہ ویسا ٹیسٹ. تو ایک کلام تھا, اس وقت اتنا کچھ آتا نہیں تھا, وہ میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. اور مبلغ نے جو بڑی حوصلہ افزائی فرمائی کہ یار آپ اتنا اچھا کلام پڑھتے ہیں, آپ اجتماع میں آئیے, یہ وہ ہفتہ وار اجتماع سے اسٹارٹ کیا. پھر محفلوں میں جو ہے وہ جانے کا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. ابھی جب سے یوں ایف جی چینل کی جرنی شروع ہوئی تو یہ سارے سلسلے موقوف ہو گئے, لیکن ماشاءاللہ سننے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یوں جاری رہتا ہے. لیکن وہ پہلا کلام مجھے یاد ہے, یعنی اس سے پہلے کا, کہ وہ مسجد کے مدرسے میں امام صاحب نے کھڑا کیا کہ بھائی, مدرس صاحب نے کھڑا کیا, استاد صاحب نے کھڑا کیا. ہم دو پڑھ رہے تھے, میرا ایک ساتھی تھا, ہم دو پڑھ رہے تھے, ہم دوج رہے تھے, باقی سب مسکرا رہے تھے. اللہ سلامت رکھے. جی فرحان بھائی بھی ہے ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ, یہ دعوت اسلامی کا ہی کرم ہے کہ نعت خوانی کی طرف رغبت دلائی. واہ ماشاء اللہ. 99 سن تھا اور اس سن میں دعوت اسلامی سے وابستگی الحمدللہ ہوئی. اس وقت اسکول میں نعت خوانی کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے, تو الحمدللہ چوتھی کلاس سے نعت خوانی کے کمپٹیشن میں حصہ لینے کی سعادت ملتی تھی. اب چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی میسر آ گیا تھا, اور ذمہ داران کی طرف سے الحمدللہ تنظیمی طور پر بھی اصلاح کے مدنی پھول ملا کرتے تھے. کیا بات ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نعت خوانی کرنی ہے, مائک سامنے ہے, عوام سامنے, ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن نعت پڑھتے پڑھتے بھی کئی شرعی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کیا بات ہے, بڑی تنظیمی طور پر یہ چیزیں سیکھنے ملی ہے کہ الحمدللہ شرعی احتیاطوں کو ہمیں پابند بنایا. آپ کے خود اسٹیٹس پہ بھی بڑا دیکھا ہے ماشاءاللہ, محفلوں میں جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ اسٹیٹس بھی لگانے کا سلسلہ ماشاءاللہ رہتا ہے. عموماً محفل مدینہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, تو میں ایک رہتا ہے مدینہ. اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے آپ کو نوازا ہے. ایک آدھ شعر بھی تو سنا ہے, پھر اور بھی سنتے ہیں آپ سے کلام, لیکن لگے ہاتھوں ایک شعر بھی تو سنا دیں آپ. یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پہلی بار جو چیز ہوتی ہے نا, وہ بندے کو زندگی بھر یاد رہتی ہے. جی. تو 99 میں ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی ہے, ہمارے شہر میں 97 یا 98 میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے. جی جی. اور انہوں نے 99 میں پہلی مرتبہ مجھے دعوت اسلامی کے منچ پر بٹھایا. اچھا, ان کا احسان مند, اللہ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے. اور پہلی نعت جو منچ پر پڑھنے کی سعادت ملی تھی وہ تھی آقا آقا بول بندے. اچھا, یہ کلام جو اسٹارٹنگ کے تھے نا, چند مشہور کلام. اور پھر ماشاءاللہ جب ہمارے اسلامی بھائی بالکل حاجی سعید بھائی اور حاجی عاصم بھائی, ان کا باقاعدگی کے ساتھ ہماری کابینہ میں, اس وقت ہند ضیائی کابینہ ہماری کابینہ کا نام تھا, تو کابینہ میں پہلی مرتبہ یہ تشریف لائے تھے سن 2005 میں بھیونڈی کی کوٹر گیٹ مسجد میں. اچھا. اور وہاں پر تھانے ڈویژن کے تمام نعت خوان جمع ہوئے تھے, اور وہاں پر جو پہلی مرتبہ تربیت کا انداز ہم نے دیکھا یار, دعوت اسلامی اب تک تو سنا تھا کہ ذمہ داران کے تربیتی اجتماع ہوتے ہیں, لیکن نعت خوانوں کا تربیتی اجتماع پہلی بار سنا تھا. تو وہاں پہنچے تھے, اور پھر اس کے بعد ایک محفل جو زندگی بھر یاد رہے گی, وہ تھی سن 2006 کی لکڑا والا ہال کی محفل پاروی شریف کی. کیا بات ہے. جس میں حاجی سعید بھائی نے زمین و زماں کا نام سنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ تو وجہ شہرت بھی سعید بھائی کی وہ بنی. تو الحمدللہ حاجی سعید بھائی, حاجی عاصم بھائی اور دیگر نعت خوان, اور ماشاءاللہ تنویر بھائی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور کلیان میں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے جو جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, ماشاءاللہ, عمران اتاری. کیا بات ہے. یہ باقاعدہ میری انگلی پکڑ کر مجھے محافل میں لے جایا کرتے تھے اور پڑھاتے تھے. تو امیر علیہ سنت نے بھی یہی ذہن دیا کہ اپنے محسنوں کو مت بھولو. کیا بات ہے. تو یہ سارے اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ شفقتیں ہیں. جیسے جیسے ذمہ داری بڑھی تو ماشاءاللہ دیگر ذمہ داران جن سے رابطہ ہوتا گیا, انہوں نے بھی آگے ہی بڑھایا ہے اللہ کی رحمت سے. کیا بات. تو یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ نعت خوانی میں کہاں کیسے, یعنی آپ دعوت اسلامی کے تحت محفل میں جاتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, کیا سلسلہ؟ اکثر محافل الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہیں, اور دیگر عاشقان رسول بھی بلاتے ہیں. تو جو مدنی مرکز نے ذہن دیا کہ تنظیمی
جو طریقہ کار ہے ہمارا جی جی اس کے مطابق الحمدللہ یعنی ساری محفلوں میں ماشاءاللہ عاشقان رسول کو کلام سنا رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب کیا زمین و زماں تمہارے لیے یعنی یوں چینل پر بھی ماشاءاللہ کافی پسند کیا گیا, اور یہ اسلامی بھائی یعنی نعت خواں بھی تعریف کر رہے ہیں تو 2 شعر تو بنتے ہیں جی صاحب نا. عطائے رب جلائے گا رب فیروز عجب فکر طلب یہ رحمت رب اس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے دونوں بے فنا عیوب روا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب ادا قرب زبا پہی دل و جان تمہارے لیے جنان چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دولن سزائے محن بے ایسے منت یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے تو پھیر دیا دے گوبے دن کو ایسے کیا کتاب تبا تمہارے لیے سوا چلے سوا وہ بھولے گلے کہ دل کو بلے دیوار کے تلے کلے دیوار کے تلے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مگین و مکان تمہارے لیے چنو چنا تمہارے لیے بنے 2 جہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کبھی کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ محفل جمنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. سعید بھائی یعنی اسٹارٹ لیتے ہیں اور وہ فوراً جو ہے وہ محفل جم جاتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اچھا سعید بھائی کچھ کھانے پینے میں بھی نعت خواہ اس طرح بھائی یعنی کچھ احتیاط کرتے ہیں یا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی آواز کو برقرار رکھنے کے لیے اچھا رکھنے کے لیے؟ میں تو جب یعنی سوالین کھانا محفل سے پہلے وہ ملیٹی آتی تھی, ملیٹی سوالین کبھی پانے کی گرگرے کرنا, تو یہ تو مجھے لگتا ہے نعت خوانوں کے نا جیب میں بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہوگا. ابھی ہے کسی کی جیب میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ لونگ ہے یعنی اس طرح کچھ نہ کچھ محفلوں میں رہتا ہے. اگر آپ اس پر بھی کچھ بتائیں, اور کچھ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں آپ کے بارے میں بھی آپ بتائیں. ایک محفل تھی الحمدللہ, اور اس محفل میں کچھ قوال ٹائپ کے نعت خواں بھی تھے, پڑھتے تھے ویسے. تو وہ جیسا انہوں نے ہمارے کچھ نعت خواں بیٹھے تھے وہاں پہ, بامبے کا واقعہ. تو اس نعت جو قوال صاحب تھے مطلب جو اس وقت وہ ڈھول پہ نہیں پڑھ رہے تھے, میوزک پہ نہیں پڑھ رہے تھے, ایسے ہی پڑھ رہے تھے وداؤٹ میوزک کے نعت پڑھ رہے تھے وہ. تو اچانک انہوں نے آواز کھینچا اور ان کی آواز دب گئی. تو انہوں نے جیب سے کچھ چیز نکالی اور وہ کیپسول تھی اسے کھائی اس کو, اور ایسا رکھا انہوں نے, اور انہوں نے وہ جو پیپر تھا اس کا ایسا پھینک دیا. تو 4-5 نعت خواں بھاگے وہاں پہ. اچھا کہ اس نے کھایا کیا انہوں نے. تو میں بولا کیوں ایسا بھاگ رہے لوگ؟ تو دیکھے تو معلوم پڑا اسٹیپ سے گولی آتی وہ کھائے. اچھا وہ کھا رہے تھے. تو مطلب جذبہ کیا حکمت تھی وہ؟ تو ان کی آواز کھل گئی. اچھا تو جب اچھا ہر نعت خواں کو یہ سب چیز سوٹ نہیں ہوتی ہے, گلا پکڑ لیتا ہے. صحیح ہے. عموماً ٹھنڈا کھانے پینے سے جو ہے وہ احتیاط کا سلسلہ رہتا ہوگا. اچھا لیکن پھر بھی جو ہے وہ خود کچھ تو جو ہے وہ ایک دم بے فکر ہوتے ہیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے جو ہے وہ کھانا پینا اپنی جگہ پر ہے, اور گلا ہوگا تو پڑھیں گے انشاءاللہ, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کھانا پینا جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ابھی تو ویسے ہی عید کے جو ہے وہ ایام چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ کھیر خرما اور پھر جو ہے وہ ٹھنڈا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہی ہوتی ہیں, اور عید کے ایام میں ہونا بھی چاہیے. ماشاءاللہ نعت خوان اسلامی بھائی ہیں, یہ بھی عید مناتے ہوں گے, اور گفتگو تو بہت ساری کرنی ہے, کچھ نہ کچھ سوالات اور بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن آئیے اب ایک سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے ہمارا لفظ سے شعر سنائیے. جی ہاں, ایک ہمارے پاس ماشاءاللہ باؤل ہے, اس میں کچھ چٹھیاں ہیں, اور نعت خوان اسلامی پہ انشاءاللہ باری باری اس کو اٹھائیں گے, اور یہ چٹھی کھولیں گے, اس میں جو لفظ نکلے گا تو ایسا ان کو شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جی, اور عید کے یہ لمحات ہیں اور آپ کا امتحان ہے. اور ویسے مجھے امید ہے کہ یہ جو نعت خواں بیٹھے ہیں یہ سب ایف جی چینل پر ماشاءاللہ ان کی آپ نے زیارت کی, محفلوں میں پڑھنے والے, محفلیں جمانے والے نعت خواں ہیں. اور بھی دعوت اسلامی انڈیا میں تو بہت سارے ہیرے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا میں اتنا ذوق شوق ہے حاجی سلیم صاحب, نعت خوانی کا اتنا ذوق شوق ہے
کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے, وہ آگے آتا ہے. ہمارے ہفتہ وار اجتماعات میں تو یوں سمجھے کہ ہر شہر میں ماشاءاللہ نعت خوانوں کی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, الحمدللہ ہے نا, ماشاءاللہ. تو چلیں سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. سعید بھائی سے اسٹارٹ لیتے ہیں. جی سعید بھائی. سعید بھائی نے بغیر کسی خوف کے چٹھی اٹھا لی ہے ماشاءاللہ. جی کیا لفظ ہے؟ آرزو. آرزو کی ہے دعا تو رہے سخی صدا, مہربان ناگہو اور کرم کرے خدا. تو قافلے میں جائے جا, اجتماع میں آئے جا, تو قافلے میں جائے جا, اجتماع میں آئے جا, ضرب حق لگا لے جا, ضرب حق لگا لے جا. ویسے میرا خیال تو کہ آرزو سے کئی سارے اشعار آپ کو یاد ہوں گے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. جی عاصم بھائی ایک چٹھی اٹھائیے گا, کھولیے, دیکھیے کون سا لفظ ہے جس سے آپ کو شعر سنانا ہے. جی کون سا لفظ ہے؟ ذکر. جی ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ ذکر آتا ہوں. عاصم بھائی کلام تو بہت پڑھتے ہیں لیکن آج وہ شعر سنانا ہے جس میں لفظ ذکر آتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگر عاصم بھائی نہ سنا سکے تو پھر دوسرے نعت خواہ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. ویسے سنا دیں گے عاصم بھائی. جی اچھا پہلے تو عاصم بھائی نا, پہلے عاصم بھائی کا یعنی چٹھی نکلی ہے تو عاصم بھائی پہلے سنائیں گے, اور پھر عاصم بھائی کو اگر سپورٹ لگے گا تو انشاءاللہ پھر دیگر نعت خواہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ہے مدد لینا ہے عاصم بھائی؟ چلیں مدد کرتے عاصم بھائی کی کوئی. جی ہاں کیا بات ہے. جی چلیں. ایک اور شعر آ گیا ہے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر. مقابلہ تو عزیز صاحب مقابلہ ہوتا ہے, جو محفل ہوتی ہے نا وہ امتحان ہوتا ہے. ماشاءاللہ. چلیں سنا دے جو ذہن میں آ رہا ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر نبی نہ کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان, ہمارے منہ میں خدا کوئی اور ایک کوئی دوسرا شعر پڑھ دو. ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. ذکر تھا آخری مہینے کا, چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا. کیا بات ہے. حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا سلام رو رو کے. اچھا صحیح ہے. ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی باقی رہ گئی ہے لیکن کمپلیٹ چلے شعر مان لیا جاتا ہے. ویسے عید کا یعنی عید کے لمحات میں تو جو ہے وہ ساری چیزیں مسئلہ نہیں ہے. جی نصر الدین بھائی آپ کی طرف کون سی کیا چٹھی ہے آپ کی, کیا نکلا ہے؟ لفظ غم. اللہ اکبر. عید کا دن ہے اور غم لفظ سے شعر سنانا ہے. غم زدہ مت کیجیے گا لیکن غم سے کوئی شعر سنا دیجیے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. ماشاءاللہ کیا بات ہے نظر الدین بھائی کی, آپ نے بھی شعر سنا دیا, بہت شکریہ. جی تنویر بھائی آپ کی باری ہے, بتائیے چٹھی کھولیے کون سا لفظ ہے جس سے آپ نے شعر جو ہے وہ سنانا ہے. 2 چٹھیاں آ گئی تھی. چلیں ایک چٹھی. جی خوف. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ اعلیٰ حضرت بھی کیا کمال کرتے ہیں ناظرین کہ ہم کیوں گھبرائیں, ہمارے لیے تو امان ہے, ہمارے لیے تو چھٹکارا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم عبد مصطفیٰ ہیں, تو پھر کیا گھبرانا.
इंशाल्लाह कब्र में भी आसानी है, क़यामत में भी आसानी है, और इंशाल्लाह बिला हिसाब किताब जन्नत में हुजूर के साथ दाखिला भी होगा इंशाल्लाह। वो नातखा पढ़ते हैं ना, खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, कुछ है ना, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह चिट्ठियां उठाई जा रही हैं, खुल रही हैं, और माशाल्लाह शेर कंप्लीट किया जा रहा है। क्या बात है हमारे इस्लामी भाइयों की। इब्राहिम भाई के पास पहुंचा हूं, आप भी एक चिट्ठी ले लीजिए, खोलिए, कौन सा लफ्ज है, शेर सुना दीजिए। मुबारक, क्या बात है, ये तो वही महफिल याद दिला देगा जो महफिल आपने की थी, यानी आपकी मुताबकत के साथ निकला है माशाल्लाह। मुबारक 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 जो में सरकार आए, क्यों आज जो में सरकार। यानी वो शेर सुनाना जिसमें लफ्ज मुबारक आता हो। ये मुबारक तो आपका जो है वो आगाज का जो है वो चंद, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, यानी जो कलाम से पहले जो इस तरह के जो है वो टाइटल इंट्रो कहेंगे उसको, ठीक है जी। कोई और याद आ रहा है? मुबारक, देखिए माशाल्लाह नात ख़्वान दीगर जो है वो बता रहे हैं। बगैर तर्ज में सुना दे चले आप। मुबारक अहले ईमान ईद मिलादुन नबी, ओ मुबारक अहले ईमान ईद मिलादुन नबी, हो गई किस्मत रक्षा मिलादुन नबी। इब्राहिम भाई का सईद भाई पूरा माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ऑन स्टूडियो भी सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, बैक स्टूडियो भी करते हैं, सबका हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। अब मुस्तकीम भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी मुस्तकीम भाई, एक चिट्ठी उठा लीजिए और बताइए क्या लफ्ज है जी। काबा, क्या बात है, काबे से तो इतने अशार हैं, अल्लाह पाक हम सबको देखना नसीब फरमाए। काश ईद का दिन हो और काबा मुअज़्ज़मा की ईद के दिन ही जियारत हो, और फिर वहीं से हम सफर करके निकलें और गुंबद खजरा की भी जियारत करें, और ईद मदीना नसीब हो और वहाँ हुजूर इस्लाम से ईदी लेने में कामयाब हो। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। फरहान भाई एक चिट्ठी लेंगे और लफ्ज निकालेंगे, कौन सा है जी। फूल, क्या बात है, अल्लाह पाक आपको फूलता फलता रखे जी। फूल क्या मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं, फूल क्या देखूं, फूल क्या देखूं, मेरी आँखों में दश्त तैबा की खार इल्ले है, दश्त तैबा की खार इल्ले।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। सारे नात ख्वां तकरीबन शेर जो है वो सुना दे रहे हैं। मुस्लिम भाई आप भी उठा लें, ठीक है, आप भी साथ में उठा लें, और इनके बाद में फिर आपने जो है वो चिट्ठी खोलकर फिर उस लफ्ज से शेर सुनाना है, ठीक है। माशाल्लाह जी, मदीना। क्या बात है, मदीना मदीना करेंगे सरकार का मदीना है शहद से मीठा, सरकार का मदीना है शहद से मीठा, से भी मीठा, सरकार का मदीना क्या खूब महका महका, सरकार का मदीना। यानी कलाम तो माशाल्लाह पढ़ा है, लेकिन वो होता है ना कुछ कुछ तर्जों में मुनाजात वाला टेस्ट भी होता है ना कभी कभी। दोनों तरह की जो है वो कैफियत बनी रहती है माशाल्लाह। चले अल्लाह सलामत रखे जी। दिल, वाह वाह वाह, दिल से ईद के दिन दिल वालों को आप कौन सा शेर सुनाना चाहेंगे जिसमें दिल आता है जी? माशाल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्या बात है माशाल्लाह। सेगमेंट तकरीबन हमारा कंप्लीट हुआ और चिट्ठियां उठाई गई, जो लफ्ज निकला उससे अशार भी सुनाए। वैसे माशाल्लाह काफी सारे कलाम जो हुआ। सईद भाई कितने कलाम याद है आपको? मैंने कहा था कि शायद हाजी मुश्ताक अतारी नहीं, उनके अलावा भी नहीं, पूरे मिलाकर आपके अंदर जो एक बुक इंस्टॉल है वो कितने कलामों का एल्बम है? 400 के ऊपर जी, 400 के ऊपर 400 के ऊपर कलाम। वाह वाह माशाल्लाह। आपको कितने कलाम याद होंगे? अच्छा, 350 400 तो रहते हैं सब माशाल्लाह। सब 350 400 वाले हैं, कुछ कम ज्यादा भी है। नसीरुद्दीन भाई? मुझे बहुत कम याद है, बहुत कम याद है। देखकर पढ़ने की आदत थी तो बहुत कम याद है। अच्छा, लेकिन कोशिश करते होंगे ना? वैसे ये जो सिलसिला जो नातों की रंग आया ना, इसने थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है कलाम याद करने का ना। सही, माशाल्लाह। आप भी कभी शिरकत तशरीफ लाए थे नातों के रंग सिलसिले में? पहला जो सीजन था उसमें शिरकत हुई थी। माशाल्लाह। तनवीर भाई को कितने कलाम याद है? जी, कलाम तो कम याद है, मतलब यानी देख करके काफी कलाम पढ़ सकते हैं। फिर भी बिना देखे कितने कलाम याद है आपको? फिर भी तकरीबन 50 कलाम याद 50 होंगे। कलाम। इब्राहिम भाई को कितने कलाम याद है? 30 से 35 30 से 35 कलाम याद है। अगर कैलकुलेशन किया जाए और अगर एक ही महफिल में सारे कलाम पढ़ो तो कितने घंटे लगेंगे आज? से सब बहुत हो जाएंगे ना, 2-3 दिन तो निकल जाएंगे। क्या बात है। आपको कितने कलाम मुस्तकीम भाई? 50 कलाम। हमारे फरहान भाई को माइक दीजिए। फरहान भाई कितने कलाम याद है? अक्सर हदाई के बख्शिश और वसाइल बख्शिश का कलाम अक्सर याद है आपको? सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। कैसे कैसे कुछ शेड्यूल बनाया था आपने याद करने का, या क्या क्या पसे मंजर क्या है इसका? अमीर अहले सुन्नत की तरफ से तरगीब माशाल्लाह यही मिलती रहती है नात ख्वान को कि बुजुर्गान दीन के लिखे हुए कलाम पढ़े जाए, जैसे हदाई के बख्शिश है, वसाइल बख्शिश, कबाल बख्शिश, सामान बख्शिश। क्या बात, जो दीवान है, नातिया दीवान। अक्सर कलाम माशाल्लाह याद है आपको? अक्सर याद है। मुस्लिम भाई क्या फरमाएंगे, कितने कलाम याद है आपको? जी, तकरीबन 100 से 120 कलाम अल्हम्दुलिल्लाह याद है। अरे वाह 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 माशाल्लाह। जी, अजहर भाई को कितने कलाम याद है? 10 से 12 कलाम। 10 से 12 कलाम याद है माशाल्लाह। महफिलों में पढ़ते तो बहुत सारे कलाम होंगे। अच्छा, कभी यदि जैसे हम उमूमन पढ़ रहे हैं, उर्दू में अशार हैं, कुछ न कुछ लफ्ज जो है वो, पंजाबी में कोई शेर याद है आपको? जी याद है? कौन सा शेर है? मैनू शौक मदीने जाऊं। अच्छा माशाल्लाह। और किन किन को याद है पंजाबी में कोई ना कोई शेर इनसे डिफरेंट हो? मुस्लिम भाई कौन सा याद है?
तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, पूरा कंप्लीट कीजिए ना। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। गुजराती का कोई शेर याद है किसी नात ख़्वाह को? यानी है वैसे मुंबई के, थोड़ा टफ तो होगा ना गुजराती में शेर याद होना। आपको याद है? अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। गुजरात वालों, आपके लिए भी एक शेर जो है वो ईद के लम्हात में हमारे नात ख़्वाह की तरफ से जी। अरबिया कमरा मदीना वारा, अरबिया कमरा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा मदीना वाला, सुनो मोहम्मद प्यारा, हाथ माला मड़े गलमा कफनी, विर्द करो छो तुम्हारा, हाथ माला मड़े गलमा कफनी, विर्द करो छो तुम्हारा, आका हर दुखियानी तमो लाजनी रखो, आका हर दुखियानी तमो लाजनी रखो, आका दीदार आपने तुम्हारा मदीना वाला, दीदार आपने तुम्हारा, अरबिया कमरा मदीना वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहिम भाई भी कुछ बोल रहे हैं। इब्राहिम भाई कुछ, अच्छा कौन सा? माइक लीजिए जरा, आप भी बताइए। पीरोना पीर छो रोशन जमीर छो, हाँ, बगदाद वाड़ा मारी डूबती नैया नो तारो। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक बरकतों से नवाजे। गुजराती में भी शेर है। सुना है हाजी सईद भाई से। अच्छा, अर्ज यही है कि एक भाई साहब को कलाम देकर सुना दे। कौन सा कलाम प्यारा है? प्यारा है मदीना, उसमें मुख्तलिफ जबानों में माशाल्लाह ये सब पढ़ा। अरे वाह माशाल्लाह। चले ये कलाम भी लेते हैं, ठीक, ये कलाम भी लेते हैं। और एक अमीर सुन्नत का लिखा हुआ कलाम है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। इस कलाम को भी इंशाल्लाह आखिर में हम शामिल करेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह रुकने मुशावरत हाजी सलीम अत्तारी साहब हमारे साथ जलवागर हैं, और स्पेशली हमने इनको आज इस सिलसिले में इनवाइट किया है, और इंशाअल्लाह करीम इनसे कुछ मदनी फूल भी लेंगे कि अमीर सुन्नत ने नात ख़्वान इस्लामी भाइयों के हवाले से क्या तरबियत फरमाई है। इंशाअल्लाह 2-5 मिनट कुछ मदनी फूलों का सिलसिला करते हैं, ताकि शेख कामिल अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की क्या सोच है, आपने नात ख़्वान को क्या नसीहत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में जो दावत इस्लामी इंडिया के तहत नात ख़्वान इस्लामी भाई महाफिले कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, झुमा रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ झूमना झुमाना ही नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल में रो भी रहे होते हैं, रुला भी रहे होते हैं। ये सारे के सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। ऐसी महफिलें होती हैं कि कईयों को, जी हाँ, कईयों को नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें नसीब हुई है। अल्लाह की रहमत से ये महफिलों का जो है वो सिलसिला हुआ करता है। जी हाजी सलीम साहब क्या फरमाएंगे? शेख तरीक़त क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया वैसे तो वक्तन फ़ौक़तन तरबियत फरमाती रहती है। जी जी। नात ख़्वालों के हवाले से आपने जो मदनी फूल इरशाद फरमाए थे ना, उसमें एक मदनी फूल बड़ा प्यारा था। क्या बात है? आपने फरमाया था कि मक्के मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करते रहो, ये बहुत बड़ी दौलत है जो आपको नसीब हुई है। क्या बात है, क्या बात। इसको संभाल कर रखना, इसे दाग नहीं लगने देना। अल्लाह, ये इतनी बड़ी दौलत है। तो अब ये ना कि ये चूंकि बज़ाहिर में अगर देखा जाए ना तो ये चंद जुमले हैं, लेकिन इसकी गहराई बहुत गहराई है। इसको संभाल कर रखना, इसको दाग धब्बे ना लगने देना। इससे क्या मुराद होगी ना, यानी नात ख़्वानी है, ये तो नेकी नेकी है, इसमें कैसे दाग धब्बे का मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? जो मैं समझ सका ना वो ये है नदीम भाई कि चूँकि अमीर अहले सुन्नत की नज़र बहुत गहरी नज़र है। जी जी जी। नात खान चूँकि पढ़ते पढ़ते मशहूर हो जाता है, अवाम इसके करीब आती है जी, तो हम कोई ऐसा अमल ना करें कि जिसकी बुनियाद पर कौम हमसे दूर हो और जो नात खानी का सिलसिला है, इसका शौक और ज़ौक़ है, उससे कम होता रहे। यानी ये कोई ऐसा ना कहे कि यार ये नात खान इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया है। जैसा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तरबियत में एक मरतबा फरमाया था, मैंने कहीं पढ़ा था ये, कि आपने फरमाया था कि ये दावत इस्लामी के पहले का वाक़िया है। अच्छा। एक मस्जिद में नात खानी शुरू थी,
जैसी असर की अजान हुई तो नात खान जाना शुरू हुए। बड़ी उम्र के एक चचा थे ना वहाँ जी, वो चिल्ला पुकार करने लगे कि ये नात खान है, अभी तो मतलब ये झुमा रहे थे, रुला रहे थे, और देखो अब अजान का वक्त आया, नमाज अजान हो रही है, नमाज का वक्त आया है और ये मस्जिदों से जा रहे हैं। तो शायद मुझको लगता है ना कि इसी के पेश नजर आपने ये इरशाद फरमाया। क्या बात है। यानी नात खानों को भी अमीर सुन्नत ने इन मदनी फूलों से नवाजा है। यानी महफिलों में जाएं तो इखलास के साथ जाएं, अल्लाह पाक की रजा के लिए जो है वो पढ़ें। और कई सारी चीजें ऐसी हो रही होती जो गैर शरई है, जैसे कि रात में जो है वो ऐसे ही कोई रोड वगैरह घेर कर महफिलें वहाँ चल रही हैं, वहाँ पर हम नात ख़्वानी का सिलसिला कर रहे हैं, या लेट नाइट तक जिस मोहल्ले में है वहाँ पर बच्चे बीमार बूढ़े होंगे, वहाँ रात में 2-2 3-3 बजे तक के महफिलों का सिलसिला चल रहा है, और मालूम पड़ा कि नमाज फजरी आजमाइश में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी प्यारी बात आपने जो है वो इरशाद फरमाई कि दाग ना लगे। यानी यूं है कि नात खान शरई उसूलों का जो है वो पाबंद रहे। नात खानी करनी है लेकिन शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर करनी है, शरीयत मुताहरा के यूं समझे कि जो उसूल हैं उस पर अमल करते हुए करनी है, ताकि आखिरत में कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। तो हर नेक अमल, ये तो मदनी फूल सभी के लिए ना, जैसा देखे कैसा है कि नात खानी करना ये एक मुस्तहब अमल है ना जी। अमीर अहले सुन्नत एक बार नहीं, मैंने तो कई मरतबा मदनी मुज़ाकरों में आपको फरमाते ये सुना है ना, ये मुस्तहब अमल है, इससे कोई ऐसा अमल ना हो कि जिसकी बुनियाद पर हमारी आखिरत दाव पर लग जाए। जैसे मिसाल के तौर पर जैसा आपने फरमाया ना कि रोड जाम कर कर ये नात खानी करना, ये तो मतलब कहीं लिखा ही नहीं है ना। हम नात खानी कर रहे हैं सवाब समझ कर। हुकूकुल इबाद का भी मामला इसमें हो बात जाता है। मतलब ये है कि घर में बच्चे हैं, इस्लामी बहनें हैं, बीमार है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमीर अहले सुन्नत ने ये तरबियत फरमाई कि शरीयत को मलहूज रखते हुए, ठीक है, हुकूक आम्मा का ख्याल रखते हुए हम नात खानी करें। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी बड़ी मिलेंगी। प्यारी तरबियत है, बड़ा प्यारा मदनी फूल है। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। हर ही मामले में हुकूकुल इबाद का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह खुसूसी हमारे मेहमान हैं, तो एक मदनी कसौटी इनके साथ हो जाए। इधर हमारे सारे नातख़्वां हैं, और मदनी कसौटी ये क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इंशाल्लाह 2-3 मिनट में हमारी ये तकरीबन मदनी कसौटी हो जाएंगी। हमारे हाजी सलीम साहब अपने जहन में कोई भी चीज़, कोई भी शख्सियत, कोई भी मकाम जो मुक़द्दस होगा, डेफिनेटली हमारी मुक़द्दस शख्सियत है तो मुक़द्दस चीज़ें ही सोचेंगी जो यहाँ पर अभी हमने उन तक पहुँचना है, तो ये सोचेंगे। और हमारे नातख़्वां इंशाअल्लाह 11 सवालात करेंगे और 12वें में जो इनको जवाब देना है, ठीक है, यानी 12वें पर इनको जवाब देना है कि इन्होंने क्या सोचा हुआ है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हुजूर आप सोच लीजिए कोई भी शख्सियत या कोई भी चीज़ आप जो सोच लें। आप देखें आप अपने तस्वुर में हमें कहाँ ले जाते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं। तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं सवालात का सिलसिला, ठीक है। पहली मरतबा है, हाँ, हल्का ये हाथ रखा पहली कसौटी हो रही है, ईद का दिन है और ये कहाँ ले जाते हैं मदनी कसौटी। लेकिन देखें मदनी कसौटी फिर मदनी कसौटी है ना। कभी कभी वो बोलते हैं ना मदीने जाने में टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन बंदा पहुंच जाता है। सोच लिया, नात खानों को पर्दा रखे। माशाल्लाह। चले आगे बढ़े जी। सही साहब, सबसे पहले आप सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आखिरी में ले, आखिर में लेना है, इनसे जवाब लेना है, ठीक है जी। आजी साहब जैसा फरमाए जी। सवाल का आगाज यहाँ से हो। आसिफ भाई 2-3 माइक है ना इस्लाम भाई के पास जी। हाँ, जिसके हाथ मैंने में से माइक है, सवाल वो शुरू काउंट करना करना है जी। नंबर 1 क्या आपकी मुरादिश है कोई जानदार है? जी। कोई जानदार है? नहीं, ला नहीं है। आपकी मुरादिश है कोई शहर है? नहीं, शहर भी नहीं है, जानदार भी नहीं है, ठीक है जी। तीसरा सवाल। अच्छा, सवाल अगर रिपीट हुआ या अगर ऐसा ही सवाल हुआ कि जो उसके मुताबिकत रखता है तो भी वो सवाल हो जाएगा, ठीक है। आपको सोच समझ के सवाल करना है। नंबर 2 हो गया जी। नंबर 3 जल्दी जल्दी। शहर भी नहीं है, जानदार भी नहीं है। नंबर 3 जी। आपकी मुरादिश है कोई शख्सियत? कोई शख्सियत नहीं, जानदार नहीं है तो शख्सियत नहीं होंगी। चले कोई बात नहीं। आप देखें, आपने पहुंचना है, अपनी जहानत का जो है वो इम्तिहान है, आपने पहुंचना है। सवाल भी सोच समझ के करना है, कहीं काउंटिंग जो है वो आपकी बढ़ते रहे और सवालात का दायरा कम ना हो जाए। 4 हो चुके हैं। क्या आपकी मुरादिश है कोई मुकद्दस चीज है? चीज तो नहीं कह सकते उसको। शय है, चीज नहीं कह सकते जी। 5। अल्लाह अकबर। ना कोई मैं तो जानदार बोल रहा है। हूं कि मैं तो बहुत आसान सोचा हूं इन लोगों के लिए अच्छा, तो। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना। लेकिन देखें इंशाल्लाह आखिर तक कहाँ पहुंचते हैं। ना कोई जानदार है, ना कोई शहर है, ना कोई शख्सियत है, ना कोई जो है वो चीज है जी। कितने सवालात हो गए? 5 हुए, ठीक है क्या जी। आपकी मुरादिश है का ताल्लुक बर्रे सगीर से? बर्रे सगीर से है। आप इसको खोलकर बोले ना, क्या क्या आप इस सवाल को थोड़ा सा और खोल दें?
बर्रे सगीर से मुराद क्या, हिंदू पाक या हाँ फिर? तो हिंदू पाक वो तो समझ में आ गया। जी जी, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो सोचा है क्या वो जो शय है वो हिंदू पाक में ऐसा? ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है जी, 6 सवाल हो गए। क्या वो मुकद्दस मकामात में से है? नहीं। मुकद्दस मकामात में से भी नहीं है जनाब। 7 सवाल हो गए ऐसा हैं। कोई मुकद्दस किताब में से है? जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जो है वो पहुंच चुके हैं। मतलब ये वाजे हो गया है 8 सवालात में, 8वें सवाल में जो है वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो मुकद्दस है और किताब है। अच्छा, लेकिन यानी इधर जो आपने फरमाया था कि कोई चीज है तो मुकद्दस चीज किताब मतलब उसको ऐसा नहीं कह सकते, किताब में से है। किताब में हाँ। से, ठीक है। मतलब चलो, इनका ये जवाब दूसरा एक तरह सवाल देखा कर जाए लिया। तो वो यही सवाल दुरुस्त फिर था से कि कोई कर चीज है, लेकिन चले वहां नहीं तो यहाँ पहुंच गए, मसला नहीं है। क्या ये किताब नात पर मुश्तमिल है? जी हाँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 10 सवालात हो गए, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद में डायरेक्टली जवाब देना है। ये जो किताब है उसका जो मक्ता होता है उसमें अत्तार आता है? जी नहीं। नहीं आता है। अल्लाह अकबर। 11 सवालात हो गए हैं और किताबें शोरा की बहुत सारी हैं, हदाई के बख्शिश भी हैं। हाँ नसीरुद्दीन भाई, यासिम भाई, हदाई के बख्शिश भी हैं, वसाइल बख्शिश भी है, सामान बख्शिश भी है, ज़ोक़े नात भी हैं, काफी सारी किताबें हैं। और अब आखिरी में जवाब देना है। जरूरी थोड़ी है किताब ही हो वो। जी, किताब में से हो वो। किताब में से हो। अच्छा, हिंट्स है ना, ये कितनी बड़ी एक आखिरी जवाब ना। जी जी, जवाब। क्या दिया जी? हिंट तो दीजिए कुछ। ये जरूरी नहीं है कि वो किताब हो, वो किताब में से है। किताब में से है, यानी आपका किसी शेर की तरफ इशारा है। अब टफ में लेके जा रहे नहीं, हैं। ये बहुत आसान है। जमीमा है। चले हिंट दे दें हाजी साहब, हिंट दे नहीं नहीं, ये मतलब कितनी बड़ी हिंट से ये दरवाजा खोल दिया आपको कि वो किताब में से है। और यूं समझ लीजिए कि आप लोगों का बहुत गहरा ताल्लुक रहता है उस चीज। क्या बात। यानी नात खानों का। हम ये हिंट ये समझे कि आप की मुराद जो है वो कोई कलाम है या वो कलाम का कोई शेर है। जी जी, बस यही तो समझ। वैसे ये एक दरवाजे नहीं ना, इसके तो बहुत सारे दरवाजे हैं। आप बिल्कुल इसमें से हर हाथ दाखिल पकड़ के दाखिल कर दिया। अब जी जनाब, कोई कलाम है या कोई शेर है? हदाई के बख्शिश में से जवाब देना। जवाब ही है अदा के बख्शिश है। नहीं, लेकिन सवालात तो पूरे हो गए ना, अब तो जवाब देना था ना। आप हिंट दे दें उनको। चले और एक दरवाजा और खोल दीजिए। अच्छा, ये है कि वो एक शेर है। एक शेर है। शेर है किताब में से। किताब एक शेर है। एक शेर। शेर है। बहुत 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 गहराई वाला हो गया ना, बहुत गहराई। कहा कि आसान पूछा है। ऐसी बड़ा मुश्किल ऐसी है। मदनी कसौटी मुझे लगता है कि बहुत आसान है। तारीख में इससे पहले कभी ना हुई। अच्छा चले, अब हिंट और देंगे ना। बहुत सारे शेर। एक हिंट और देंगे हाजी साहब इंशाल्लाह। जी, एक हिंट और देंगे कि कलाम, आप कलाम बता दें उस कलाम का, फिर ये शेर कोई भी अच्छा उस कलाम में से कोई एक जुमला बता दे। अच्छा, यहाँ पढ़ा गया अभी वो। सुभान अल्लाह। हदायत फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। लालाजार फिरते हैं वो सुए लालाजार। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते। कलाम बता, कलाम हाजी साहब कलाम बता। पढ़ा गया जैसा पढ़ा। एक और हिंट दे देना, एक और हिंट दे दें हमको। जी, वो कलाम पढ़ा गया जैसा। इसी कलाम का शेर है। सुभान अल्लाह। पकड़ेगा। जी चले जनाब, अब वो शेर सुनाना है, यानी वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, इसका कोई शेर है जो हाजी उस साहब गली के का सामने? गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है। यानी ये यूं समझे कि सबसे टफ मदनी कसौटी थी कि ना कोई शेर थी, ना कोई जानदार था, ना कोई बहुत किताब आसान थी। था जी, बहुत आसान था, मगर बहुत मुश्किल से नाथखानों को लेके गया। क्या बात है। लेकिन चले बिल आखिर माशाल्लाह पहुंच ही गए। अल्लाह पाक सलामत रखें। माशाल्लाह मदनी कसौटी का सिलसिला ख़त्म हुआ, सिलसिला जारी है इन नात खानों के साथ। और माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू भी, बहुत सारी गुफ्तगू थी जो हमारी बाकी हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं वो बाकी हैं, लेकिन चूंकि वक्त हमारा कंप्लीट हो रहा है माशाल्लाह। ईद के इन प्रोग्राम्स में जो स्पेशल ट्रांसमिशन जारी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप FGN चैनल पर देख रहे हैं, बुज़ुर्गों के साथ भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं। तो ईद जो है वो सेलिब्रेशन करें, ईद की जो है वो खुशियाँ मनाएं। हर बंदे के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेशन करें, अपने बुजुर्गों के साथ सेलिब्रेशन करें, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ। जी हाँ, ये जो अय्याम हैं ये खुशी मनाने के हैं, खुशी का इजहार करने के हैं। और खुशी का इजहार करना इन दिनों ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। तो ईद मनाएं अपनों के साथ, नाथखानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, उलमा के साथ। जी हाँ, और अपने रिश्तेदारों के साथ। अब इंशाल्लाह आखिर में मैं हाजी सलीम साहब की एक गुफ्तगू लेकर फिर एंड करता हूँ। हाजी सलीम साहब माशाल्लाह, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही अर्ज़ किया है कि
माशाल्लाह एक पूरा एक डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट है नात ख्वान इस्लामी भाइयों का डिपार्टमेंट। हुजूर अगर शॉर्ट में अगर आप बता दें चंद जुमलों में कि नात ख्वानों का डिपार्टमेंट क्या वर्क कर रहा है और इसका क्या मकसद है, फिर मैं चाहूँगा कि आखिर में 2-3 अशार बात रमज़ान ईद होती है वो लेकर फिर इंशाल्लाह में एंड करते हैं। अल्लाह पाक करोड़ा करोड़ रहमत नाजिल फरमाए अमीर अहले सुन्नत की मुबारक ज़ात पर कि आपने इस दौर में हमको दावत इस्लामी अता फरमाई, क्योंकि इस दौर में दावत इस्लामी का मिलना नेमत ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ये नेमत उज़्मा है हमारे लिए, क्योंकि ये दौर फितनों वाला दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त दावत इस्लामी इंडिया 50 से ज़ायद डिपार्टमेंट में दीन बतीन की खिदमत कर रही है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट मजलिस नात खान भी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये डिपार्टमेंट के ज़रिए इन नात खानों की तरबियत भी होती है। और नदीम भाई मैं अगर कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा कि इश्क रसूल बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया नात खानी भी है, लेकिन ये हो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक। तो ये डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से हमारे नात खानों की हम अच्छे अंदाज में तरबियत करें और वो तरबियत के ज़रिए से लोगों में इश्क रसूल के जाम तकसीम करें। यानी मैं अगर इसको यूँ एक समेटने की कोशिश करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बज़रिए अशार दिल में किस अंदाज में उतारा जा सकता है, इसकी तरबियत, फिर माशाल्लाह एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है दावत इस्लामी इंडिया, इसका अपना एक जो है वो तरीक़ेकार है, अपना एक मामला है, अपना एक अंदाज़ है। दावत इस्लामी इंडिया के ज़रिए बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, हफ्तावार इज्तिमात हो रहे हैं, सबका शेड्यूल बनाया जाता है। और यहाँ जितने इस्लामी पे बैठे हो माशाल्लाह ये सिर्फ नात खां नहीं है, इनकी बड़ी बड़ी तंजीमी कई इस्लामी पे ऐसे जिनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं, कुछ छोटी जिम्मेदारी पर हैं, कुछ बड़ी जिम्मेदारी पर है, लेकिन माशाल्लाह ये जिम्मेदार भी हैं और दावत इस्लामी इंडिया का काम भी कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखें इस शोबे को भी और दावत इस्लामी इंडिया को भी अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए। जी आखिर में 2-3 अशार हो जाएं, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। सुभान अल्लाह। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। दारों के वास्ते बलिदां रोज़ादारों के वास्ते बलिदां आखिरत की नवीद होती है, आखिरत की नवीद होती है। ईद अतार उसकी है जिसको ईद अतार, ईद अतार, ईद अतार उसकी है जिसको ख्वाब में उनकी दीद होती है, ख्वाब में उनकी दीद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती
کی رحمت مزید ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. عید میں ہمیں مغفرت کا انعام عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں فرنی بھی باقی رہ گئی ہیں. تو چلیں ہم پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر فرنی کی طرف بڑھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. عید منائیں, خوشیاں عام کریں اور خوشی کو عام کریں, نفرتوں کو مٹائیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ